Hello guys, welcome to the channel. So in last video we covered the half part of the chapter. So we discussed how to calculate private income if you are giving these four parts of the private income. Also here was the concept of calculating private income from domestic concept. So this all will be cleared when you will move forward with the last chapter of national income, where you will literally calculate the value of national income and the other things. So just don't get worried about this, you will get everything afterwards. Moving forward, we are going to, this is also the same thing. If from in the last video we calculated private income from the domestic concept. Okay, now here they are asking for private income from national concept. So what you need to do is just calculate everything from the national income. Okay, so the aggregate of national income is NNPFC, and if we are given the national concept of GNP MP, so what we need to change, what we need to add and deduct so it will become NNP. Okay, so first we need to go from G to N. Okay, gross from gross to net, so we have to deduct depreciation. Okay, the depreciation is being deducted from here. Also we are going from market price to factor cost, so we need to deduct net indirect taxes so as to calculate the real cost of the product being manufactured. So here we will calculate NNPFC. From the national income we are going to deduct all the income that a person is earning from the government sector. So we will deduct income from property from the government administrative departments and from non-departmental enterprises. We will get whatever we will get that we will calculate by adding all the stuff of the private income, that is income from domestic product accruing to private sector, also NFIA, net factor income from abroad, and net national debt interest, current transfers for government, and net current transfer from rest of the world. Okay, so now moving forward we will learn the difference between private income and national income. What private income includes is all the factor incomes as well as transfer income. Okay, but in national income only factor incomes are considered. Okay, no income from the foreign is considered in national income while calculating national income. But if we are calculating the private income of a particular person, we can take both the factor income that we are earning, also the transfer income we are not earning but we are receiving. Moving forward on the second one, पब्लिक सेक्टर इनकम. ओके, तो प्राइवेट इनकम में किसी भी तरीके से पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट नेशनल इनकम में पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे एनएनपीएफसी में से सारी गवर्नमेंट वाली माइनस करी थी जब भी हमें वो पता चला था. ओके, सो नाउ we will talk about private income versus income from domestic product accruing to private sector. So the domestic income from domestic product accruing to private sector was part of a factor income. Factor income was divided into two parts. सबसे पहले था domestic product accruing to private sector, and second was income earned outside the domestic territory, that is NFI, net factor income from abroad. Okay, so private income will include all the four parts, but the domestic product will be this part. Okay, so we will first take into consideration whether it's a factor income or transfer income. Okay, private income both transfer income भी होती है और earned income भी होती है, मतलब factor income. बाकी जो domestic product accruing to private sector है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी factor income में आती है, that is earned one. अगर हम second point की बात करें concept की, okay, so if we take into consideration the second concept. Okay, so private income is a national concept, it also include NFIA. Okay, but the domestic income, it is a domestic kind of income and it excludes NFIA. So here, okay, if we are talking about whole of the private income, तो वो हर चीज़ कंसिडर करती है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सेक्टर एंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर. ओके, बट अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. तो दिस इज द डिफरेंस. आई विल
I will send the PDF of the differences so you can make it more clearer. Now moving forward, we'll learn about the personal income. First we talked about private income, now we will talk about personal income. What personal income is? The sum total of all the incomes that are actually received by household from all the sources. कोई भी इंडिविजुअल हर टाइप की जो भी इनकम रिसीव कर रहा है एक्चुअली में, उसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम. ओके, सो पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्सेस इन रिटेन अर्निंग. सो वी विल for calculating the personal income, what we will do is private income में से हम लोग corporate taxes and retained earnings को minus कर देंगे. तो we will get what actually the employees will get at last. So corporate taxes हम minus कर देते हैं क्योंकि ये private enterprises अपनी तरफ से government को pay करती है. On the second hand, जो रिटेन अर्निंग है वो अपने फ्यूचर एक्सपेंशंस और अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए कंपनी रिटेन अर्निंग की तरह कुछ पार्ट अपने लिए रिजर्व में रखती है. इसीलिए हम कभी भी प्राइवेट इनकम में से रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्सेस को माइनस करके पर्सनल इनकम निकाल सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला. इफ वी टेक द डिफरेंसेस, तो पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो वी विल राइट द मीनिंग. पर्सनल इनकम क्या होता है? एक्चुअली द इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. बट प्राइवेट इनकम हम ये देखते हैं कि इट रिफर्स टू द इनकम विच एक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज. जो ये कंपनी को एक्रूर कर रहा है और ये पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन को. ऑल्सो कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम है, लेकिन ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि इसमें पर्सनल इनकम लाई करता है. फॉर्मूला इज पर्सनल इनकम का क्या होता है? फॉर्मूला प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्सेस और रिटेन अर्निंग को माइनस कर देंगे. ओके, नाउ प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? पर्सनल इनकम प्लस कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस रिटेन अर्निंग, अपोजिट ऑफ दिस फॉर्मूला. एंड अगर हम पर्सनल इनकम और वर्सेस नेशनल इनकम की बात करें तो पर्सनल इनकम क्या होती है? वो एक्चुअली जो रिसीव हो रही है हाउस होल्ड को सारे सोर्सेज से. लेकिन नेशनल इनकम क्या होती है? जो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year. ओके, all factor income, it only includes all factor income, it includes all income and it only includes factor income by a normal resident of a country during a period of 1 year. तो हमारी नेशनल इनकम क्या है? हम यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, हम जो अर्न कर रहे हैं पूरे साल में हमारी नेशनल इनकम होगी. लेकिन हमारी पर्सनल इनकम क्या होगी? जो हम इंडिया में रहकर भी अर्न कर रहे हैं या फिर फॉरेन से भी कुछ अर्न कर रहे हैं, तो बोथ द इनकम कंबाइंड टुगेदर विल बी कॉल्ड पर्सनल इनकम. ओके, जैसे कि मैंने अभी बोल दिया फैक्टर इनकम भी इंक्लूड कर रहा है ट्रांसफर, लेकिन ये सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसिडर करता है. ऑल्सो जो पब्लिक सेक्टर इनकम है ना, वो पर्सनल इनकम में नहीं आती, डज नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर. बाकी नेशनल इनकम में पब्लिक सेक्टर की वो आती है. नाउ अगर हम आगे बढ़े तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जैसे कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल के हाथ में कोई इनकम आती है, उसके बाद में हमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस भी पे करने होते हैं. सो उन टैक्सेस को एक्चुअली पे करने के बाद एट लास्ट जो हमारे पास बचा है जिसको हम डिस्पोज कर सकते हैं, अगर हमें वो सेव करना है तो हम सेव कर सकते हैं या उसको खर्च कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक्सक्लूड्स पर्सनल टैक्सेस. हम पर्सनल टैक्स उसमें से डिडक्ट कर देंगे. ऑल्सो अगर कोई भी गवर्नमेंट के छोटे मोटे फीस या फाइन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हाउस टैक्सेस वगैरह होंगे तो वो माइनस करने के बाद में जो हमारा वो आएगा दैट विल बी कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज, अगर हमने पर्सनल इनकम निकाल ली तो पर्सनल इनकम में से हम लोग माइनस करेंगे पर्सनल टैक्सेस माइनस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ओवर हेयर जिसमें ये दे रखा है कि नेशनल इनकम में से हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाल सकते हैं. ओके, सो नेशनल इनकम इंक्लूड ऑल दी थिंग्स दैट मीन्स इट इंक्लूड. ओके, सो हमने लास्ट डिफरेंस में अभी यहाँ पे पढ़ा था कि जो नेशनल इनकम है वो सारी फैक्टर इनकम को इंक्लूड करती है और वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर की इनकम्स को वो करती है कंसिडर. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नेशनल इनकम है तो हमें ये देखना है कि हमें उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करनी. तो हम सबसे पहले नेशनल इनकम में से हम गवर्नमेंट इनकम्स को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऐसा एग्रीगेट जिसमें अगर हम सारी वो चीज़ें प्लस करें जो कि हमारी प्राइवेट इनकम में प्लस होनी चाहिए. ओके, तो वो हमारा प्राइवेट इनकम में हो जाएगा. जैसे कि सपोज करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट. ओके,
एंड नेशनल डेट इंटरेस्ट एंड नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी सारी ट्रांसफर इनकम ऐड करी है हमने। फैक्टर इनकम क्यों नहीं ऐड करी? क्योंकि नेशनल इनकम में हमने यहाँ पे बात करी थी कि फैक्टर इनकम ऑलरेडी सारी इंक्लूडेड है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। ओके, तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बाकी हमने ये ट्रांसफर इनकम्स को इंक्लूड किया जिससे हमें मिल गया प्राइवेट इनकम। अगर प्राइवेट इनकम में से हम कॉर्पोरेट टैक्सेस और रिटेन अर्निंग्स को माइनस कर देंगे तो हमारी पर्सनल इनकम आ जाएगी, और उसके बाद में हम पर्सनल टैक्सेस और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट माइनस कर देंगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। और सपोज इसी का हम उल्टा कर देंगे तो हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी क्लियर्ड मोर क्लियर इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ द नेशनल इनकम. Also, I will send this picture of this part so you could understand what it actually meant. So you need to really need to read the book once or twice before the exam to make everything clear. क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड नहीं करता, और फिर आपको उसके बाद कोई दूसरी चीज़ निकालने के लिए क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है. सो जस्ट focus on this third and fourth chapter more. So once again I am going to talk about the formula of national disposable income. तो national disposable income में से अगर हम net direct indirect taxes plus net current transfers from rest of the world plus कर दें तो वो हमारा आ जाएगा national disposable income. Disposable income already we talked about, okay, कि हम actually में nationally मतलब होल कंट्री के लिए के पास टोटल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है. ओके, सो ये हम कैसे इंक्लूड करेंगे? नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, ये हम ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि एक तरह से ये ट्रांसफर इनकम होती है गवर्नमेंट की और ये फ्री होती है यूज करने के लिए. ऑल्सो नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो होती है ट्रांसफर इनकम जो कि गवर्नमेंट रिसीव करती है फ्रॉम अब्रॉड. सो अगर हम इसे दोनों को ऐड कर ले तो हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को भी इंक्लूड कर सकते हैं. एक और तरह का फॉर्मूला है, मैं इसको आपकी पीडीएफ में बना के भेज दूंगी. अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम फैक्टर इनकम्स को ही इंक्लूड करता है, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफर इनकम भी इंक्लूड हो जाती है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या होता है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ये हम ऐड करते हैं. ओके, बाकी नेशनल इनकम में ये एक्सक्लूड किया जाता है. सो हियर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि ये सिर्फ हाउस होल्ड को इंक्लूड करता है. लेकिन अगर हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है और ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इंक्लूड करता है, बिकॉज हम नेशनली बात कर रहे हैं. लेकिन पर्सनल में हम सिर्फ हाउस होल्ड की इनकम बात कर रहे हैं. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में इंक्लूड करता है एंड इसमें एक्सक्लूड करता है. सो फॉर मोर क्लेरिफिकेशन मैंने आपको बताया है कि नेशनल इनकम यानी कि NNPFC में क्या एक्चुअली में इंक्लूड करता है. तो इसमें सारी फैक्टर इनकम्स इंक्लूड करती हैं जो कि अर्न करी गई हैं, एंड वी विल कंसिडर बोथ डोमेस्टिक इनकम अर्न एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, प्राइवेट इनकम यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ में डिवाइडेड है. एक तो ये है हमारी अर्नड इनकम, दैट इज फैक्टर इनकम, और ये है अनअर्नड इनकम. ये डोमेस्टिकली भी एक तरह से इंक्लूड होती है और एक फ्रॉम द वर्ल्ड होती हैं जो कि अर्न करी गई हैं. और अनअर्नड में एक फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक फ्रॉम द वर्ल्ड और एक फ्रॉम थ्रू नेशनल डेट इंटरेस्ट. ओके, पर्सनल इनकम भी बोथ फैक्टर और ट्रांसफर इनकम दोनों हो सकती हैं, और सेम इज विद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. सो एक बार इसका क्लियर व्यू देख लीजिए जिससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑल्सो अगर नेट और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आपको वो करना है तो नेट के लिए आपको पता है आपको डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करना पड़ेगा, और अगर ग्रॉस निकालनी है तो डेप्रिसिएशन उसमें प्लस करना पड़ेगा. नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का निकालने का फॉर्मूला एक और होता है नेशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि नेशनली कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग्स, तो वो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आएगा. ओके, सो वाई दिस इज वाई वी यूजुअली इन इकोनॉमिक्स यूज वाई फॉर इनकम. इनकम के लिए हम ये वाला अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं y. सो मेक इट क्लियर. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. इफ़ यू will face any problem that will be
more clearer if you will watch the PDF and the images of the notes. Okay, so I don't think so there is anything left in this chapter. This is all. I will send you this formula, so it will be more clearer for you to calculate all the aggregates and all the incomes. Also disposable income, yes. So this chapter is completed. Next we will talk about the fourth chapter, that is measurement of national income, in the next video. So till then, take care, bye.